آپ یہاں پر کیسے آ گئی پھر؟ میں تو بچی پیو میرا کوئی نہیں ہے، نہ میری ماں نہ میرا پیو، میرے برا دی شادی ہے بہانے نہ لیا مینوں نہیں دسیا باجی بیوی دے پیچھے لگا۔ بیوی کو رکھنا چاہتا ہوگا نا، بیوی نے کہا ہوگا ماں کو چھوڑ دو۔ میرا دنیا تے کوئی نہیں ہے، میں گلی میں کی کراں۔ 33 مرلے جگہ ہے میری، 33 مرلے جگہ ہے اور آپ ادھر ہیں آج۔ جس ماں نے مزدوریاں کر کے بچوں کو پالا، ان کے پاس آج ماں کے لیے ایک کمرہ نہیں ہے۔ بچوں کے لیے جگہ نہیں رہ، سونے کے لیے جوان بچے ہمارے، ہم تو جگہ رکھے، کبھی پانی سے روٹی کھا لی، پکوڑے سے روٹی کھا لی، کسی ٹائم کھا لی کسی ٹائم نہیں کھائی، ساری رات نہیں سوتی۔ ابھی اب بیٹھی ہوں نا یہاں، میں بالکل نہیں سوئی ہوں پوری رات۔ بیٹے سے کتنی دیر ہو گئی نہیں ملی؟ ایک بار آیا تھا میرے پاس مجھ سے سگنیچرز کروانے کے لیے، تو میں نے کر دیے، میں نے کہا چلو میرا تو کچھ نہیں بننا، تمہارا ہی کچھ بن جائے۔ فون تک بھی نہیں آتا، اگر میں کروں اس نے پتہ نہیں مجھے بلاک کیا ہوا ہے کیا، کبھی کال نہیں گئی۔ آج ہم لوگ موجود ہیں ملیحہ اولڈ ایج ہوم میں، جہاں پر بڑی خوبصورت مائیں موجود ہیں جو کہ اپنے گھروں سے نکالی گئی ہیں۔ ان تمام ماؤں کے ساتھ بات کریں گے۔ یہاں پر 100 سال والی بھی ماں ہیں اور یہاں پر وہ ماں بھی موجود ہے جس نے 18 ماہ گلیوں کی خاک چھانی اور اپنی ہی اولاد کی وہ دھتکاری ہوئی مائیں ہیں جن کے گھر میں شاید ان کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ ان تمام ماؤں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب اولاد جو ہے، وہ بدبخت اولاد جو ہے، جب اپنی ماؤں کو، اپنی جنت کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں تو ان ماؤں کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آسیہ آسیہ۔ جی، کہاں سے آئی ہیں؟ نور میں ہاں، نور لاہور سے آئی ہیں۔ کتنے جی، بچے؟ 2 بچے، 2 بیٹے ہیں کہ 2 بیٹی ہیں؟ ایک بیٹی تے ایک بیٹا۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ جی، کتنی عمر ہے ان کی؟ اودی عمر ہے وے 35، بیٹے کی عمر 35 سال ہے اور جی، بیٹی کی؟ بیٹی دی 30۔ اچھا، بیٹی کی شادی ہو گئی ہوئی ہے؟ جی، بیٹے کی؟ بیٹے دی شادی کیتی ہوں۔ بیٹے کی بھی کر دی ہے؟ جی، اور شوہر کدھر ہیں آپ کے؟ شوہر نہیں ہے، شوہر نہیں میرا نہیں ہے۔ کہاں گیا؟ فوت ہو گئے ہیں؟ جی، کتنی دیر ہوئی ہے؟ بابا دن ہو گئے۔ تو آپ بیٹے کے ساتھ رہتی تھی اپنے؟ جی، بیٹے تو صاحب بیٹے کی شادی کو کتنی دیر ہوئی ہے؟ بیٹے دی شادی بابا کیتی، کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ بابا دن ہو گئے باجی، دن ہوئے یا مہینے یا سال؟ مہینہ ہی ہو گیا۔ مہینہ ہو گیا ہے۔ جی، مہینہ۔ آپ یہاں پر کیسے آ گئی پھر؟ بیٹا چھاڑ دے گیا باجی۔ بیٹے نے شادی کی تو آپ کو ادھر چھوڑ گیا؟ جی، بیٹا چھاڑ دے گئے، انہیں نہیں دسیا نہیں مینوں، انہیں نہیں نام لیا۔ بیٹا پیار کرتا تھا؟ جی کردا سی، بیٹی پیار کرتی ہے؟ ہاں کردے ہی پیار۔ اور بہو؟ بہو نہیں ہے، بہو نہیں کرتی پیار نہیں ہے؟ نہیں، کیا کہتی ہے؟ بس وہ گھروں آندی جا تو چلی جا۔ تے میں اپنی دھی کو نہیں میں گئی، میں دھی کو جانا سے، تے میرے بھرا دی شادی انہیں پھر نہیں شادی کیتی تے وہ نا اتنے مینوں چھوڑ گیا، تے ہن شادی میرے بھرا دی تے جانا سی تے وہ آندا سی نہیں جانا، مینوں دسیا نہیں انہیں، یہ تے بہانے لال مینوں چھاڑ دے گیا۔ کس بہانے سے چھوڑ کر گیا؟ کیا کہہ کر گیا؟ یہاں پر کس بہانے سے لے کر آیا تھا؟ پتہ نہیں کہڑے بہانے لال لے کے آیا مینوں نہیں پتا۔ میں تو بچی پیو میرا کوئی نہیں ہے، نہ میری ماں نہ میرا پیو، میرے برا دی شادی ہے تے نہیں دسیا۔ آپ کے بھائی کی شادی ہے؟ جی، بھائی نے بلایا آپ کو؟ میں نہیں دسیا، نے مینوں دسیا نہیں، بہانے نال لیا مینوں نہیں دسیا باجی۔ بیٹے نے نہیں بتایا؟ پالیا میری بہن لا کے دے جے۔ باجی بیوی دے پیچھے لگا، اینوں پوچھ لو میں ادھر دی روندی نکال دی، مینوں دسے سی، مینوں دسدا میرے نہ آتی۔
ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਗਮਲਾ ਬਾਹਰ ਚੜਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। सुबह का नाश्ता क्यों नहीं किया, क्या हुआ? ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਲਿਆਇਆ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਲਿਆਇਆ। बीवी को रखना चाहता होगा ना, बीवी ने कहा होगा माँ को छोड़ दो। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਐ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਲਿਆਇਆ। याद आता है बेटा? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ अगर आपको बता देता आपने नहीं आना था, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਾਜੀ, मैं ਆਉਣਾ ਸੀ, आ जाना था फिर भी। ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ बेटे की खुशी थी ना माँ को अलहदा करने में, ਜੀ। बेटे की खुशी थी माँ को छोड़ने में। बेटा आया नहीं उसके बाद मिलने? ਬਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਭਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਐਤਵਾਰ, कपड़े पकड़ा के चला गया। ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਭਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਭਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। मिलकर नहीं गया उस दिन जिस दिन कपड़े देकर गया? ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ, मिलकर गया? ਤੇਰੋ ਅੰਦਰ ਤੇਰੋ कहते हैं इधर ही रहो। ਆਓ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, मेरा दुनिया तो कोई नहीं है, मैं गलती है, मैं की करा। देखिए अभी आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा बहनें मिल गई हैं आपकी, हाँ आप तो एक अच्छी जगह पर आ गई हैं ना, ये तो बदकिस्मती आपकी औलाद की है। बेटे की किस तरह से परवरिश की? आप तो बेवा थी ना, तो किस तरह से बच्चे की परवरिश की, उसको किस तरह से पाला, क्या काम किया? बाजी मेरा काम तो होता, मैं कहीं नहीं सीती होना, मैं नहीं सी होना, मेरा काम तो नहीं है। अगर आपका खामंद होता तो आपका बेटा छोड़ के ही ना जाता ना, आप खामंद के पास रह लेती। बेटे के पास रहना चाहती है जी, तो बेटा नहीं रखना चाहता? बीवी नहीं मानती, वो बीवी को ज्यादा अहमियत दे रहा है, माँ को तो नहीं दे रहा ना। बीवी आंदी नहीं तेन चाहते आ, इन बहाने ला चाहते गई, बाजी ने पूछ लो। पसंद की शादी की है बेटे ने? ए बाजी मैंने नहीं, मैं अपनी हथी की शादी। आपने खुद से की है बेटे की शादी? रिश्तेदारों की लेकर आई है बहू या किसी और गैरों की? 11 दी बाजी, गैरों की लेकर आई है। आते साथ उसने आपको ही निकाल दिया? हाँ हैं? 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने दे अंदर बेटे को माँ से अलग कर दिया? हाँ लहदा कर देता। यहाँ पर दिल नहीं लग रहा? नहीं बाजी, यहाँ पे तो सब बड़ा प्यार करने वाले हैं। बेटे का प्यार चाहिए? हाँ बाजी बेटे का प्यार चाहिए। अच्छा बेटे को कोई पैगाम देना है? अगर आपका बेटा कहीं देख रहा हो, शायद देख ले। उस दिन मिलकर नहीं गया ना? मिल के गया बाजी, उस दिन ये कह कर गया ना यहीं पे रहना है आज से, आहो तेरा ना। तो बेटे को कोई पैगाम देना है? नहीं बाजी, कुछ नहीं कहना बेटे को? मैं बाजी उन्हें की कहना, बेटे से शिकायत कोई नहीं करनी? बाजी जो ना चाहते चला गया, मैं उन्हें की कहना बाजी। बेटे के लिए दुआ करती हैं? दुआ तो बाजी मैं करती रहनी ये है। आपके जो आंसू हैं ये अल्लाह को तो नहीं पसंद आएंगे बेटे के लिए? अगर अल्लाह ने बेटे की पकड़ कर ली तो फिर? आसिया जी क्या सोच रही हैं? क्या सोच रही हैं? भाई मैं की सोचना। अच्छा आपकी जो बेटी है वो नहीं आई आपको मिलने? नहीं वो नहीं आई मिलन, वो क्यों नहीं आई? उसको नहीं पता माँ किधर गई है? पता नहीं बाजी है नहीं, मैंने नहीं पता। बेटी का फोन नंबर नहीं है? नहीं है? नहीं उधर फोन बेटी के साथ राब्ता भी नहीं है? नहीं, बेटी कितने दिनों बाद मिलने आती थी जब आप अपने घर थी? मैं आप जानी सब बाजी मिलन बेटी का घर कहाँ पर है? मना में। अच्छा लाहौर में ही हुआ ना? जी तो बेटी को पता ही नहीं माँ किधर है? नहीं उन्होंने नहीं पता भाई। और अगर पता लग गया बेटी ले जाएगी? हाँ ले जावे दी बाजी, बेटी प्यार करती है, बेटी ले जाएगी? हाँ ले जावे दी बाजी। तो ये जहाँ पर आप रह रही हो ये जगह जो है ये माँओं के लिए नहीं है? माँ ने था, माँओं के लिए है ना, लेकिन अपना घर याद आता है ना?
ਬਾਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। इस टाइम एक और माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का दिन जो है वो इन माँओं के साथ ही गुजारेंगे, इन माँओं के दुख सुनेंगे कि इन माँओं के यहाँ पर क्या क्या दुख हैं। बेशक यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की सहूलत मिलती है, लेकिन जो अपना घर होता है वो उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आपको कौन छोड़ के गया है? मुझे हमसाया छोड़ के गया। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बेटे हैं? 2 बेटे 2 बेटी हैं। अच्छा, शोहर नहीं है? 50 साल हो गए सब को बहुत। शोहर को छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, शोहर को 50 साल हो गए हैं फौत हुए। 25 रुपये रोज का मैंने काम करा, मजदूरी, उसमें अपनी इज्जत करी। इज्जत करने के बाद फिर मेरे जब इज्जत हो गई फिर मजदूरी करने लगी लोग। आपने मजदूरी की हुई है? ये देखो हाथ पैर सब मुड़े हुए। मजदूरी करके बच्चों को पाला है? बच्चों को पाला। मजदूरी ये जिस तरह औरतें करती हैं काम, घरों में काम करके। हाँ, ऐसे करा। फिर उसके बाद बच्चे भी आए भी, 4 बच्चे, शादी करी 4 बच्चों की, सब कुछ करा, हर कुछ करा। फिर बच्चों की शादियां की, मजदूरियां कर करके बच्चों को पाला, बच्चों को बड़ा किया, फिर बच्चों की शादियां कर दी, बेटों की भी बेटियों की भी। उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनके बच्चों की भी शादी हो गई है। अच्छा, आप नानी दादी भी बन गई हैं? पर नानी, अच्छा, पर नानी पर दादी बन गई हैं। पर नानी भी बन गई, पर दादी भी बन गई। और तो फिर यहाँ पर हम साया क्यों छोड़ गया, क्या हुआ? वो रखते ही नहीं थे। मेरा पेके, मेरे जो थे ना वालिद भाई, वो फौत हो गए। मकान मेरा था, 33 मकान आपके नाम था? मकान मेरे मियाँ के नाम था। अच्छा, मेरा मियाँ अपने बेटे के नाम करा, छोटे के। वहाँ रहती थी मैं, मेरे बेटों को नहीं बनने दी, मेरे बेटों को निकाल दिया था उन्होंने। उसका नाम क्या, मैं रहती थी अकेली। हाँ, तो मैं रहती थी, उन्होंने फिर लड़ाई करी मेरे साथ, मुझे मारा कूटा, ताला तोड़ के मेरा सामान बाहर फेंक दिया। बेटों ने? नहीं, मेरे पेके नहीं कहते जिन्हें, मैके वालों ने? मैके वालों ने। मेरे बाप गए, पोते पोतियाँ, अच्छा, बेटे पोते, उन्होंने ही काम करा। हाँ, फिर मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली थी मैं। थाना रावी रोड में चली। तो बेटे नहीं थे साथ आपके? बेटे नहीं थे, बेटा छोटा सा बेटा ना, वो भी नहीं था, बड़ा आया ही नहीं। बस मेरी बेटी आई थी बड़ी, वो मेरे साथ जाके थाने में उन्हें रपट कराई। उन्होंने रपट नहीं लिखी, उन्होंने कहा 15 वालों को बुलाओ, 15 वालों को बुलाओ। हमने उन्हें बुलाया, उन्हें कहा भी हमारा सामान अंदर करो, हमारा मकान, मेरा मकान अपना है। 33 मरले जगह है मेरी। 33 मरले जगह है और आप इधर हैं आज? अब वो बेच के मेरे बाप ने, भाई ने खा लिया सारा कुछ। आपके साथ जुल्म तो आपके बाप और आपके भाइयों ने किया ना? हाँ, भतीजों ने, उनके भतीजों के बेटों ने इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ करा कि बहुत बड़ा जुल्म करा मेरे साथ। इतने मकान आपके शोहर ने आपको दिया था? मेरा शुरू से मेरी सास का मकान था। अच्छा, ठीक है। हाँ, जब तो 3 कमरे थे, अब तो 10 कमरे हैं उसमें। उन्होंने बना के अपने बच्चे सारे मतलब आबाद कर दिए, बेईमानी कर ली। मेरे सास का जेवर वो रख लिया। मेरी सास से कहा था कि जब तेरा बेटा जवान होगा हम दे देंगे। मेरे बाप ने, मेरे चचा ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने जेवर भी था, सोना भी था, चांदी भी थी, हर चीज़ थी, ज़मीन भी थी, सब चीज़ रखा हुआ उन्होंने। अब मेरे साथ इतना जुल्म करा उन्होंने, इतना जुल्म करा कि मैं रात दिन मैंने मेहनत ही करी है। मेहनत कर करके मैंने अपना वक्त पास करा। कभी उन्होंने मेरा कोई आसरा नहीं लगाया। पैसे वाले पैसा दे दिया, 15 वाले हैं, उनको पैसा दे दिया और वहाँ जाके थाने में जाकर कह दिए इसने तुमसे हिस्सा ले लिया। मैं हिस्सा किस चीज़ का लेती? मकान मेरा अपना था, ठीक है ना। तो वो थानेदार ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। तो आपके बेटों की शादियां हो गई हैं ना, बेटों के घर किधर है? किराए पर रहते। वो किराए पे रहते हैं। जिस माँ ने मजदूरियां करके बच्चों को पाला, उनके पास आज माँ के लिए एक कमरा नहीं है? नहीं, एक कमरा ले आओ किराए पे। आ गए थे, हमारे बच्चों की जगह नहीं है। क्या कहते हैं? बच्चों की नहीं जगह नहीं रहे, सोने की नहीं, जवान बच्चे हमारे, हम तुझे कहाँ रखें? कहते हैं हम तुझे कहाँ रखें? फिर मैं ऐसे ही 18 महीने में गलियों में फिरती रही। 18 महीने गलियों में फिरती रही, कभी किसी के घर सो गए, कभी किसी की मिन्नत कर ली, कभी किसी की मिन्नत कर ली। फिर मैंने, हमारा हमसाया है गली में, थाने के साथ ही उसका घर है, उसे मैंने, उसका नाम क्या, उसे कहा भाई कहती थी उसे बचपन से, भाई मुझे कहीं भेज दे दाई, मैं आराम से सो तो जाऊँगी ना। क्यों? इज्जत का मामला है, बूढ़ा है, जवान है, आज कोई किसी का ईमान का पता नहीं है, ठीक है ना। आज किसी के ईमान का पता नहीं। उसने बेचारे ने कोशिश करी जगह जगह, तो उन्होंने कहा उनके बेटे यहाँ में या बेटियाँ में, तो वो करके जावे, जब रखेंगे नहीं रखते। फिर यहाँ मलिया है ना, इनका जो है इदारा, यहाँ कोशिश करी, यहाँ इन्होंने रख लिया। इनकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ा एहसान है मेरे ऊपर
ये मेरी जिस दिन यहाँ पर आई उस दिन फिर सुकून की नींद आई होगी 18 महीने बाद। 18 महीने बाद सारा दिन गलियों में फिरती थी, कभी पानी से रोटी खा ली, कभी किसी पकौड़े से रोटी खा ली, किसी टाइम खा ली किसी टाइम नहीं खाई, बस ऐसे फिरती थी। लोगों ने कहा कि गिलास में पानी मांग लिया किसी दरवाजे में से, तो पानी से रोटी खा। बेटियां भी नहीं रख सकी। बेटों ने कह दिया कि भाई तूने तो उनसे हिस्सा ले लिया, तूने उन्हें ये कर लिया, हम तुझे नहीं रखेंगे। बेटियों ने कहा हिस्सा वगैरह गया, अब तू भी फारिग है। हाँ तो फारा गया सबने, बेटों ने बेटियों ने सब नहीं। फिर मैं उसका नाम क्या, मैं इधर आ गई। क्या करती, तो मेरे जो बेके वाले उन्होंने ही सारा काम खराब करा, मेरे दुश्मन बने हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ उनके तक आवाज़ जावे कि वो बेईमान, आप कहेंगे मैं उनके नाम बताऊँगी सबके। ये बताएं, बच्चे याद आते होंगे आपको? बस कुछ ना पूछो, सारी रात नहीं सोती। अभी अब बैठी हूँ ना यहाँ, मैं बिल्कुल नहीं सोई पूरी रात। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बिल्कुल नहीं सोई। पता क्या क्या ख्याल आते हैं, कौन कौन से ख्याल आते हैं, ठीक है ना। इतना कुछ उनके नहीं करा। आप बताएं कि मैं इतनी दुखी माँ, मैं कहाँ जाऊँ, ना कोई मेरा भाई ना भतीजा, ना उन्होंने मेरा धोखा करा बहुत बड़ा। ज़मीन बेच बेच के खा गई सारी, अपने उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं, कारोबार करे हुए। अब मैं गई तो उन्होंने पैसा भर दिया 15 वालों को, थाने रावी रोड में। वो सुनेंगे, मैं ये जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, सच। अच्छा, मुझे बताएं, बच्चे मिलने के लिए नहीं आते आपको? नहीं, कोई नहीं मिला। कितनी देर हो गई है यहाँ पे आपको? मुझे हो गए, अब 13 तारीख आएगी ना, उसकी 4 महीने हो जाएंगे। अच्छा, 4 महीने हो गए। 4 महीनों में बच्चे नहीं आए? जिससे कोई रास्ता नहीं है। उनको पता ही नहीं माँ कहाँ है, जिंदा है नहीं जिंदा, नहीं पता? पता, हम साहब ने बता दिया, जिसने मुझे छोड़ के गया था ना। तो फिर भी नहीं आए? हाँ, उसने खबर पहुँचा दी है कि मैं छोड़ के आया हूँ तुम्हारी माँ। बच्चे नहीं आए, बेटियां नहीं आती, बेटे नहीं आते? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ना कोई फ़ोन किया उन्होंने, किसी के पास फ़ोन करते जो। आपका दिल करता होगा मिलने के लिए आए? अब क्या दिल करेगा, जब मुझे धक्के ही हैं सारा तरफ से। पहले मेके वालों ने धक्के मार दिए, फिर औलाद ने धक्के मार दिए, फिर क्या दिल करेगा। बस ये किस्मत में जो लिखा अल्लाह पूरा करेगा। मेरा तो यही इरादा है कि लॉन्ग नो में मैं तो मरूँ, यहीं से अल्लाह ताला मुझे उठा लेगा, ठीक है ना। ईमान के साथ, ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ नहीं है। मेरे बाप ने, भाइयों ने, मेरे भतीजों ने इतना बड़ा धोखा करा, अब भी ये कह रहे हैं कि हमसे हिस्सा ले लिया। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कभी अपने बच्चे भी आए, अपनी मेहनत से भी आए, मैंने कोई पैसा किसी से नहीं लिया, ना कोई मैंने लिखत करके दी। मैं कहाँ करूँ। तो ये तो बेटों की बदबख्ती है ना, उन्होंने अपनी माँ को निकाल दिया। हाँ, अल्लाह की पकड़ में आएंगे ना एक दिन। बस उनकी मर्जी है। अल्लाह तो देख रहा है ना कि माँ को ही निकाल दिया घर से। मैं गई थी 2 दफ़ा उसके दरवाजे में, मैंने कहा मुझे रख ले। बेटे को कहा मैं चल मुझे किराए पे लेके दे दे, मैं 5000 मेहनत करके ना, मैं मेहनत नहीं कर सकती, मैं 5000 किराया दे दा करूँगी। तो कहने लगा कि उसका नाम क्या, हम नहीं रख सकते, उसकी बीवी ने कहा हम नहीं रख सकते। अच्छा, किराया भी आपने देना था मेहनत करके, बेटे ने फिर भी नहीं जगह दी? बेटे ने, बहू ने कहा हम नहीं रखना, अब दूसरे बेटे के जाओ। दूसरे बेटे पे इतना भेजी, वो कह बड़ी बेटी के पास जा, बड़ी बेटी के क्या, उसने कहा छोटी बेटी के जा। फिर मैं गलियों में फिरती थी दिन और रात, हर बंदा देखता था यहाँ बैठी है, वहाँ बैठी, वहाँ बैठी, हर कोई कहता था कितनी ज़िंदगी खराब हो रही है। फिर मैं इधर आई हूँ। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे, मलिया मैडम जो उनको तंदुरुस्ती दे, खैर खैरियत रखे अल्लाह, उनकी ज़िंदगी दे, उन्हें लेके हिदायत दे। मेरे साथ बहुत जुल्म हुए और मेरे अपनों ने करे, मेरे अपने मैके वालों ने करा जुल्म। बेटों के लिए दुआ करती हैं या अल्लाह से शिकायत करती हैं? नहीं, अल्लाह से शिकायत नहीं करती, मैं कहती अल्लाह मेरी, अभी भी दुआ करती हैं उनके मैं ये लिए? कहती हूँ सबके नहीं करती हूँ, पूरी मखलूक के नहीं करती हूँ। अभी भी बेटों के लिए मुंह से दुआएं निकलती हैं? बस मैं कहती हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे, हिदायत दे दे कि मेरी बुढ़ापे में ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैं 12 साल से बीमार हूँ, ये मेरी हड्डी सब मुड़े हुए, हाथ पैर ये हाथ नहीं मेरा काम करता, फालस भी हो गया था मुझे एक बार, ठीक है ना। पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। बस अल्लाह, मैं तो अल्लाह से ऊपर छोड़ा हुआ, अल्लाह जो तो करेगा बेहतर करेगा, अल्लाह बहुत बड़ा, ठीक है ना। अल्लाह ने मेरा 50 साल साथ दिया, मैंने अपनी मेहनत से, मैंने किसी से ऐसे नहीं लिया, मैंने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को भी शादी ब्याह करे, ठीक है ना। मैं क्या करूँ, मेरे मैके वालों ने मुझे, थाना रावी रोड के वहाँ रहते हैं, उस गली में रहते हैं, 38 नंबर गली है, 6 नंबर मकान है, मकान क्या प्लाट था 6 नंबर, जिसमें मकान बना रखे लोगों को बेच बेच के उन्होंने। मुझे तो आज तक एक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जायदाद की तकसीम होती है, चीज़ों की तकसीम होती है, माँ की तकसीम कैसे की जा सकती है कि बेटे जो हैं
बहुओं के आने के बाद, बीवियों के आने के बाद अपनी माँ के लिए घर में एक नुक्कर नहीं छोड़ सकते, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। वो माँ जो कह रही है मैं खुद मजदूरी करके किराया दे दूँगी, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। ये किस किस्म की औलाद होती है कि जो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकेंगे, हम लोगों की ज़िंदगी में हम लोगों को सुकून मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये चाहे जितनी मर्ज़ी हदायत की दुआएं कर लें, ये चाहे जितनी मर्ज़ी अपनी औलाद की सेहत की, लंबी उम्र की, जो मर्ज़ी दुआएं कर लें, इनके जो आंसू हैं ना वो अल्लाह की ज़ात देख रही है। और जिसने माँ को इस तरह से तकलीफ़ दी है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और कभी भी नहीं सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता। मुझे तो सब ने दुख दिया, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे बाप की औलाद, उसने, मेरे औलाद ने, मेरे सारी उम्र से दुखी हूँ, मेरा अंदर से ख़त्म हुआ। बस अपनी मस्ती में रही कि मैं चलो बच्चे पल जाएंगे, बच्चे ये ना हो जाए। अभी तक मैं उनका साथ देती थी। आप सोचती होंगी बच्चे पाल जाएंगे, मेरा सहारा बन जाएंगे। हाँ। वो फिर अच्छा सहारा बने ना। कितना अच्छा बने, कितना अच्छा सहारा बने कि लोगों की बातों में आके कि उसका नाम क्या, तुम्हारी माँ ने तो उनसे पैसा ले लिया, उन्होंने झूठ बोला ना। इस तरह की औलाद के लिए सिर्फ हदायत की दुआ की जा सकती है। इस तरह की औलाद को वाकई में छोड़ देना चाहिए उनके हाल पर और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इनके ऊपर अगर उस तरह का वक्त आए उससे पहले पहले इन लोगों को हिदायत आ जाए। एक और माँ जी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और टीचिंग करती रही हैं ये माँ जी अपने वक्त में, 3 जगह पर ट्यूशन्स पढ़ाती रही हैं और उसके बाद आज ज़िंदगी है कि यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक बड़ा मुश्किल टाइम है कि अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से कमाया हो, औलाद को पाला हो, खिलाया हो, एक अच्छा वक्त गुजारा और उसके बाद आप यहाँ पर आए। उसके बाद आप किसी और के आगे हाथ फैलाने के काबिल हो जाए, ये कितनी बड़ी अजियत की बात है कि आपने खुद जब एक सारी ज़िंदगी सबको दिया हो, फीड किया, मदद की हो हर किसी की, और आगे जाके जब आपका टाइम आए तो आपको कोई मदद ना करे, आप मदद के लिए हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाएं। माँ को उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, नहीं रोटी कपड़ा मकान तो अल्लाह दे ही देता है, सिर्फ इज़्ज़त चाहिए, औलाद का सहारा चाहिए, तरफ से इज़्ज़त चाहिए, सहारा चाहिए, सिर्फ इतना दिल को हो कि हाँ भाई ये है, मेरी औलाद है। तो मैंने जो बच्चा अपना पाला है वो प्री मैच्योर बच्चा था, जिसको मैंने इतनी मुसीबतों, मैंने तो मुशक्क़तों से पाल के बड़ा किया। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि ये एहसान है, माँ बाप की भी फ़र्ज़ है। एक देखें, एक तराजू के 2 पलड़े, उसमें एक के अंदर हुकूक है, एक के अंदर फ़राइज़ हैं। उन दोनों पलड़ों को बराबर होना चाहिए। एक तरफ के हुकूक जो हैं वो दूसरी तरफ के फ़राइज़ हो जाते हैं और दूसरी तरफ के जो वो उस तरफ के हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने तो अपना ये फ़र्ज़ समझ के पूरा किया कि मेरा तो फ़र्ज़ था, जो अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी है, मैं उसमें पूरी उतरूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे हुए 3 बच्चे थे। एक पहले बेटी वो तो हो गई थी, फिर बेटा। 3 बच्चों में से मेरा एक ये बच्चा, ये भी प्री मैच्योर था, इसका लाइफ रिस्क पे था। एक बेटा है आपका? एक ही बेटा। और शोहर? शोहर की 6 साल पहले डेथ हो गई है। तो ये बेटा भी जो है, ये इसकी 6 साल पहले मैंने शादी की है। बस तब से ही आहिस्ता 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 हालात जो हैं वो, हालांकि मैं सारा अखराजात मैं ख़ुद उठाती थी। जॉब करती थी? मैं जॉब भी करती थी, मैं 3 शिफ्टों में ट्यूशनिंग भी करती थी। तो अभी मैंने तो सिर्फ 4-5 माह पहले ही जॉब छोड़ी है कि मैं बेघर हो गई। 4-5 माह पहले जॉब छोड़ी और तब भी यहाँ पर आ गई? से मैं यहाँ पे आ गई ना कि जो मेरा ठिकाना नहीं रहा। कमाना छोड़ दिया ना? कमाना छोड़ दिया, मैं पैसे देना छोड़ दिए ना? 3 साल से तो मैं अपने घर से निकली हुई ना, अपने बेटे से जुदा हूँ 3 साल। क्या वजह थी? वजह यही कि उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि ये माँ इधर रहे। हालांकि मैं अपना सारा काम भी खुद करना, मैंने बाहर से कमा के भी लाना, सब कुछ खुद करना। फिर मेरी सिस्टर्स ने मुझे दी सपोर्ट, सबके घरों में उन्होंने मुझे ये कहा चलो 2 वक्त की रोटी है ना, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। मैंने अपना इतना, जितना मेरा घर का सामान था, मैंने डोनेट कर दिया। मैंने कहा मेरी जान खुद मैं अपने आप को नहीं उठा सकती, मैं सामान को क्या आग लगाऊंगी। फिर मैं कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। अब आके 3 साल से वो मुझे कर रहे थे सपोर्ट। अब आगे ज़ाहिर है उनके बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया कि जब अपना बेटा है तो हम क्यों करें।
फिर 4-5 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ी है, क्योंकि मेरा जिस स्कूल में मैं जॉब कर रही थी मैं उस स्कूल में भी रही हूँ। छोटा सा रूम था जिसमें एक मुश्किल से एक चारपाई बिछी थी, वहाँ पे भी मैं रही हूँ। लेकिन जब स्कूल खुलने वाले हो गए फिर उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्शन हो जाना है, तो ये अलाउ नहीं होता। फिर मैं एक अपनी दोस्त के घर चली गई, उसका एक छोटा सा कमरा था, उसमें वो खुद भी बेचारी गरीब सी थी, नहीं होया गुजर। फिर मैंने ये उस पे फेसबुक पे इनका देखा, मैडम मलीहा का, ये इस ओल्ड होम का, मलीहा ओल्ड होम का, तो फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो है ना सेटअप, और ये मुझे बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ इत्मीनान है। बेटे से कितनी देर हो गई नहीं मिली? 3 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया। कोई राब्ता नहीं? एक बार आया था मेरे पास मुझसे सिग्नेचर्स करवाने के लिए, वो प्रॉपर्टी का कोई इशू था, तो मैंने कर दिए। मैंने कहा चलो मेरा तो कुछ नहीं बनना, तुम्हारा ही कुछ बन जाए, बस उसके लिए आया था। उसके बाद कोई उससे रब्ता नहीं, ना फ़ोन भी नहीं क्या उठा। काम करता है बेटा? वो वकील है। बेटे को वकील बनाया, एक ऐसे बेटे को जिसकी लाइफ ही रिस्क पर थी। रिस्क पर थी और उसको। आपने उस बेटे को पाला, उसकी तरबियत की, परवरिश की और वकील बनाया। में उसका बाप हमेशा बाहर के मुल्कों में रहता था। मैंने खुद तनहा उस बच्चे की परवरिश की है, और उसका जहाँ पे भी जिस तरह अब उसकी, हत्ता कि उसकी शादी भी मैंने इतनी शानदार तरीके से कराई कि सारे लोग हैरान रह गए। मैंने कहा चलो ये भी आखिरी मेरा फ़र्ज़ है ना, जो मेरे फ़राइज़। शादी आपने अपनी मर्जी से की थी? मैंने, हाँ जी, अरेंज मैरिज थी। और फिर बहू के साथ नहीं बन सकी? वो बस पता नहीं, ये तो अब क्या पता। ये क्यों बहुएं आती हैं तो वो चाहती हैं कि जो हमारी सास है वो ना हो, या वो छोड़कर चली जाए, या निकल जाए, या दुनिया से चली जाए? ये क्यों लड़कियों की ख्वाहिश हमारे है? माशरे में आजकल जो है ना वो ट्रेंड यही चल पड़ा है कि बस मियाँ बीवी और तीसरा कोई नहीं। हत्ता कि कुछ मैंने ये पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि उलमा तक ने फतवे दे दिए हैं कि शौहर की, माँ बाप की खिदमत करना उसकी बीवी का फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो वो शौहर है जिसकी माँ है, वो तो कह सकता है ना कि मैं खुद कर लूँगा, कोई मेरी माँ का कुछ ना करे, मेरी माँ है, मैं खुद कर लूँगा, इतना तो कह सकता है। लेकिन उसको इतनी भी इजाज़त नहीं दी जाती है। मैं कभी सोचा था जिंदगी में कि बेटे के बगैर रहना पड़ेगा? ये तो अब हकीकत है, अब हकीकत से तो इंसान आंखें नहीं चुरा सकता, जितना मर्जी चुरा ले। सोचा नहीं था, मैं तो कहीं किसी के घर मिलने भी चली जाती थी ना, हमारे 3 सिटीज़ में, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर। मैं पठान हूँ, असल में मैं पेशावर से हूँ, पेशावर भी जाना पड़ता है। तो इसको मैं कुछ दिनों के लिए भी जब जवान भी हो गया था, तो कुछ दिनों के लिए भी छोड़ के जाने पे बड़ा मेरा होता था। वहाँ मैंने जाके बातों बातों में जिक्र करना, तो मेरे भांजे भतीजियाँ मुझे छेड़ते होते थे, कहते देखो बहाने बहाने से याद कर रही बेटे को। तो मैंने कहा नहीं, बेटे को याद करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत थोड़ी होती है, बेटा है वो, मतलब हर बात में बीच में बात आती है। तो ये तो आपने जो अभी क्वेश्चन किया ना, ये मुझे आज तक किसी ने नहीं किया कि आपने ज़िंदगी में कभी सोचा था। बेटा सोचता कोई भी नहीं है कि उसके हालात हमेशा हर इंसान की ये नेचर है कि वो बेहतरी के बारे में सोचता है, बेहतर हालात के बारे में सोचता है। बुरे हालात के बारे में कोई नहीं सोचता कि मुझे इस कंडीशन में से भी गुजरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आजमाइशों से गुजर कर ही इंसान जो है वो मजबूत बनता है। एक और सवाल कर। जी बिल बेशक। ईदें भी गुजरती होंगी, त्यौहार भी आते होंगे, तकलीफ़ भी आती होगी, बीमारी भी आ जाती है कभी कोई ऐसी कि आपको सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। कभी उम्र के इस हिस्से में दवाइयों से ज़्यादा ना ज़ख़म जो है वो अपनों की वजह से हील होते हैं, तो वो आप ज़ाहिर दरवाज़ों की तरफ देखती होंगी कि शायद मेरा बेटा आ जाए। खुद क्या आएगा, वो तो उसका फ़ोन तक भी नहीं आता। अगर मैं करूँ, उसने पता नहीं मुझे ब्लॉक किया हुआ है क्या, कभी कॉल नहीं गई। मैं आपकी बात करवाऊँ आपके बेटे? नहीं करेगा,
वो भाग जाता है ऐसे में, क्योंकि मेरी बहनों ने बड़ी दफ़ा कोशिशें की हैं। मेरी एक अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया, मेरी बहनों ने बड़ी कोशिशें की हैं। वो क्यों इतना बदजन हो गया, क्यों इतना बेजार हो गया? देखिए अपनी वो उसकी बेगम की तरफ से सही वही है ना, एक साइड रखो तो या मुझे रखोगे तो या उसको रखो। हमारी एक और भी बहन है यहाँ पे, उनके साथ भी सेम केस है। उनके बेटे कहते हैं कि ठीक है माँ जी आप आ जाए, हम आपको रख लेते, मैं बीवियों को तलाक दे देते। तो ऐसे एक माँ तो नहीं चाहेगी ना कि वो इतनी मुश्किलों से अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा के किसी पोस्ट पे पहुंचा के उसकी शादी पे कितने, आज को आप शादियां आसानी से होती हैं, कितने अखराजात होते हैं, करवा के फिर वो कहे जी आप तलाक दे दो। कोई माँ ये नहीं कहेगी। मेरे ऐसी औलाद सुखी रह लेती है जिनकी माएँ इस तरह रो रही होती हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो उसका दिल मुतमईन हो ना। मुझे हमारा एक कॉमन वहाँ पे है मोहल्ले में दुकानदार, वो बच्चा वो बड़ा मेरी वो करता है, इज़्ज़त करता है। उसको पता चला कि मैं वहाँ घर से जा चुकी हूँ, तो वो कहता है माँ जी मैंने देखा आपका बेटा भी ना मुतमईन नहीं है, वो परेशान है, वो भी परेशान है। और अल्लाह जाने उसको क्या थ्रेट है, क्या उसको वो है, वो उसने ये इस तरह का जो है ना वतीरा इख्तियार किया हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है। कभी ऐसा लगा ख्याल में ही कि सुबह उठूंगी तो बेटा सामने होगा, बेटा आ जाएगा? अब तो नहीं, बस उम्मीद भी टूट गई है? उम्मीद भी नहीं रही। अब मेरा भी दिल, झूठ क्यों कहना, ठीक है बहुत को समझा दिया, मना लिया। रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, मज़ारों पे जाके दुआएं, मजलिसों में दुआएं, हर जगह पे दुआएं, लेकिन अब जब देख लिया कि कोई हासिल नहीं निकल रहा तो बस अपने आप को अपनी तकदीर के हवाले कर दिया। आपका बेटा तो वकील है, वो तो लोगों के फैसले करता होगा, अपनी माँ के फैसले में इतना कमज़ोर क्यों? ये उसके मतलब उसमें इसमें ये मुझे लोगों के फैसलों के लिए जाहिर है कन्विंस करता होगा, बात करता होगा, दलाइल पेश करता होगा, और अपने मामले में इतना अपने मामले में कमज़ोर है। बस किस्मत की बात है, हमारी किस्मत में ऐसे ही था। बस अल्लाह पाक मैडम लिया को तंदुरुस्ती इस तरह के इदारे ना हो तो माएँ किधर जाएंगी? देखें, एक तो ये बात है कि अगर थोड़ा सा ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुछ ना कुछ है कि अपना मैं गुज़र बसर सिर्फ इतना कि दवाइयाँ वगैरह मैं कर लेती, लेकिन एक बात और है कि ये इदारे इसलिए भी ज़रूरी हैं कि बंदा अगर तन्हा कहीं रह रहा है, कोई फ्लैट लिया, कोई रूम लिया, उसके अंदर मर जाता है, तो ये पिछले दिनों वाक़यात हुए हैं कि अंदर ही अंदर लाशें तक गल सड़ गई हैं। कम से कम यहाँ एक दूसरे का पता तो होता है ना, कोई देख लेता है कि भाई ये चुप क्यों है। यहाँ तक हम इतना वो करते हैं कि ये फ़लानी आज बोल नहीं रही, ये किस वजह से चुप है, इसको कोई यहाँ पर ये होता है कि एक दूसरे से बात हो जाती है, दुख जो है वो बांट लिया जाता है। देख लेते हैं, एक दूसरे की केयर कर लेते हैं। एक की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए कोई काम कर दिया, उसको खाने को दे दिया। फिर ये भी है कि अगर देखो, अगर पता नहीं होता वक्त का, किस वक्त किसका वक्त पूरा होगा, तो ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो कम से कम यहाँ पे पता तो चल जाता। कहते हैं कि किसी के दुनिया से जाने का दुख और किसी के दुनिया में रहते हुए उसको ना देखना, उसको ना मिलना, दोनों दुख जो है वो भरते भरते वक्त लगता है। और ये दुख के कोई दुनिया में मौजूद है, आपको पता है, और वो आपको मिल नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा, ये दुख भरता ही नहीं है कभी भी। ये कभी भी नहीं भरता, ये कभी भी नहीं भरता। और ये इंसान को इसके देर पंच करता रहता है कि वो जो आपकी सेहत होती है ना, वो पहले मेंटली जो है वो अफेक्ट होती है, उसके बाद फिजिकली होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अभी बेटे के लिए दुआएं करती हैं? अभी भी मैं और ये आप तो पढ़ी लिखी हैं ना, आपको तो तमाम चीज़ों का पता है कि माँ के आंसू जब निकलते हैं औलाद के लिए तो अर्श हिल जाता है, पता है आपको? बिल्कुल। और आपको तो पता ही होगा कि आप जिस तरह से रोती हैं, आप जिस तरह से तड़प रही हैं, आप बता रही हैं मज़ारों पर गई, मन्नतें, मुरादें, दुआएं, क्या क्या कुछ। और आपको लगता है कि अल्लाह की पकड़ जब होगी तो बड़ी जालिमाना तरीके से अब तो दुआएं उसके लिए यही कर रही हूँ ना कि या अल्लाह उसको इस पकड़ में ना पकड़ना। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है जो वो सबके सामने नहीं बताता, या क्या क्या मजबूरी है उसकी, क्या है। अच्छा, ये जो है ना, ये माओं की मासूमाना बातें हैं
کہ ہمارے بیٹے کی کوئی پکڑ ہوگی, کوئی مجبوری ہوگی. کسی بھی اولاد کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی. اس ماں کی کیا مجبوری ہے کہ یہ ایک ایسے بیٹے کے لیے آج بھی اس طرح سے آنسو بہا رہی ہے, اس طرح سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو اس پکڑ سے بچائی. پتہ ہے کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ دیکھی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز ہے مائیں. اور یقین کریں کہ سارے جہان کی خوشیاں سمیٹ کر دیکھ لیں, آپ کی ماں کے نہ ہونے کا دکھ, آپ کی ماں کے جانے کا دکھ ہمیشہ ایک طرف رہے گا. آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں کی کوئی شمیم آرا, یہاں کی کوئی جان ہے, رونق لگا کے رکھتی ہے. میں تو 2 سال ہو گئی یہاں پہ رہ رہی ہوں. یعنی مجھے لگتا ہے کہ پھر بنیاد آپ نے رکھی تھی آ کے. مجھے 2 سال میڈم نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ. میڈم نے, ہماری میڈم بہت اچھی ہے. آپ یہاں پر کیوں آئی؟ میں شوق سے آئی ہوں. شوق سے تو کوئی نہیں آتا. نہیں, شوق سے آئی ہوں. شوق سے اپنا گھر کوئی نہیں چھوڑتا. چلو کوئی بات نہیں, آپ جو سمجھ لیں اس سے آئی ہوں. وہ ہمارا گھر سیل ہو گیا نا, تو اس لیے پھر مجھے آنا پڑ گیا. آپ کا بیٹا ہے کوئی؟ نہیں, کوئی بچے نہیں ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اچھا. کوئی بھی نہیں, سب فوت ہوئے ہیں. بہنیں بھی, بھائی بھی, ماں بھی, باپ بھی, سارے فوت ہوئے. آپ کا گھر کس نے سیل کیا؟ گھر میں جو میاں تھا نا وہ فوت ہو گیا, اس کے بچوں نے بیچ دیا. بڑے بیٹے نے سیل کر دیا. ان کے پہلے سے تھے بچے؟ ہاں, اس کے پہلے. آپ سے دوسری شادی کی؟ جی, دوسرے. تو آپ کے بچے نہیں ہوئے؟ نہیں. اچھا, تو وہ ان بچوں نے گھر سیل کر دیا اور آپ پھر؟ اور پیمنٹ انہوں نے پکڑ لی اور مجھے کچھ نہیں دیا. تو پھر وہ کہہ رہے کہ جہاں سے مرضی کھانا کھاؤ, جہاں سے مرضی پہنو, ہم نے کچھ نہیں آپ کو دینا. تو پھر میرا رہنا وہاں پہ بے فضول تھا. پھر میں آ گئی ہوں, میڈم میں آ گئی ہوں ادھر. میڈم نے مجھے بلا لیا ادھر. مجھے 2 سال ہو گئے یہاں پہ رہ رہی ہوں. میں بہت خوش ہوں. مجھے بہت اچھی میڈم لگی ہے اور میں بہت خوش ہوں. اوروں کو تو مجھے نہیں پتہ وہ خوش ہے یا نہیں ہے, میں بہت خوش ہوں. کیونکہ 2 سال ایسے نہیں گزر جاتے. خوشی ملے تو جب بھی کوئی خوش ہوتا ہے نا, پھر ہی ٹائم گزرتا ہے نا. اور میں بہت خوش ہوں. اور میڈم ہماری بہت پیاری ہے, بہت اچھی ہے. اب میڈم کا شکریہ اتنا دا کرے پھر بھی کم ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی میں نا بڑے فیشن کیے ہوئے ہیں. ہاں, جوانی میں واقعی وہ صحیح بات ہے, اس میں کوئی بہت بڑی ماڈل رہ چکی ہے. میری بات سنیں, جوانی میں تو وہ فیشن ہر کوئی کرتا ہے. یہ دیکھو, جوانی میں فیشن کرنا, فیشن کوئی شے ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو سمارٹ رکھنا, اپنے آپ کو فیشن رکھنا, اپنے آپ کو فیشن رکھنا اور اچھا رکھنا, کھانا پینا اچھا, پہننا پونا اچھا. وہ یہ ہے کہ یہ اپنا شوق ہوتا ہے. ہاں نا, آپ کو شوق؟ مجھے بہت شوق ہے. دیکھ لیں, مجھے پتہ لگ گیا. جی جی, شوق, مجھے بہت شوق ہے پہننے کا. اچھا سے اچھا ڈریس پہنوں, اچھا سے اچھا میں جویلری پہنوں, اچھا سے اچھا میں کھانا کھاؤں, اچھا سے اچھا. سب سے اچھا کھانے میں کیا لگتا تھا آپ کو, یا ابھی کیا اچھا لگتا ہے؟ جی, کھانے میں دیکھو میری بات سنیں, یہ ایک جیسا کھانا ملتا ہے اور سب کے ساتھ کھانا پڑتا ہے. نہیں, آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی؟ چائنیز تو نہیں اچھا لگتا؟ یہ ہے کہ میرے چاول. جی. اچھا, مجھے اب بتائیں, آپ سنائیں گے کیا؟ آپ کی اتنی پیاری آواز ہے, آپ یہاں پر بڑی رونق لگاتی ہیں. میری بات سنیں, آپ نے کیا سننا ہے؟ جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ سنا دیں. ابھی ذرا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیکن آواز تو بڑی پیاری ہے نا. آواز پیاری ہے. اچھا, سننا پھر آپ نے. اچھا, دیکھیں میں تو ڈیک پہ سنتی ہوں. میں ڈیک کتوں لے آوا؟ دیکھو لگا ہوا ہے. ہم نے آپ کی آواز سے سننا ہے. یہ میں پاگل, میرا دل بھی پاگل, پاگل میں 2 نینا, ایک دوجے بن رہ نہیں سکتے, تو طوطا میں مینا, دل کھونا سا بھی کھو گیا, پیار ہونا سا بھی ہو گیا, ہن وقت نہیں اسی رہنا, تو میری جان میں تیری جان,
वादा रहा मेरा एक डाली दे दो फूल सजरे तू तोता मैं मैना दिल खोना सा भी खो गया प्यार होना सा भी हो गया हुण वख नहीं असी रहना तू मेरी जान मैं तेरी जान वादा रहा मेरा एक डाली दे दो फूल सजरे तू तोता मैं मैना। अभी कौन सा सुनना है? ठीक है, बताएं कि तोता कौन सा वाला है? तोता तो बेचारा चले गया, तोती रह गई। तोता चला गया। ले जी, आज हम लोग मलीहा ओल्ड एज होम में मौजूद थे, जहाँ पर हम लोगों ने मुलाकात की बहुत ही खूबसूरत माओं के साथ। और यहाँ पर हमारी एक ऐसी माँ जी भी मौजूद है जिनकी उम्र तकरीबन 100 साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और माशाल्लाह बड़ी सेहतमंद है हमारे सामने। साल से 1 साल की है। और ये वो माँ जी हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। बहुत डांटती हैं आप लोगों ने, इनकी डांट का बुरा नहीं मानना। माँ जी हाँ जी। क्या हाल है आपका? ठीक हो? मैं ठीक नहीं। की होया तानू? दाब चढ़दा हो किंदा क्या हुआ? दाब चढ़दा बुखार चढ़ जाता है। ते माँ जी ਤੁਹਾਡੀ कितनी उम्र है? 100 साल की उम्र है मेरी। 100 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरी कितनी उम्र है? औरत से उम्र नहीं पूछते। की है? माँ जी मैं सुनिया औरतां कोलों उम्र नहीं पूछी दी। कि तू कितना सुनिया? तू कितना सुन रहा? औरत कोलों किसी कोलों सुनिया सी मैं। की किसी औरत ने कहा सी कि उम्र नहीं दसनी अपनी। केड़ी औरत ने तेन कह रही टंगा क्यों ने? अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? केड़ी औरत ने कहा सी? चले छोड़े, जिसने भी कहा था। कुछ सुनाना है आपने हमें? तो आता ना दस उसका कोई पिंड दी हैगी सी। पिंड दी केड़ी है मेरी ठीकनी? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ऐ शेखपुर आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਔਰਤ। हाँ शेखपुर मेरी भतीजी है। ਅੱਛਾ, ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ये बता शेखपुर ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ तेरे शेखपुर ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? की कीता? ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ सारे उत्थे ही आ। ਉਧਰ ਹੀ ਨੇ। हाँ शेख ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। आप छड़ के गई है थूड़ी जल्दी मेरी भतीजी। ਭਤੀਜੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। आहो जी भरा रही थी। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? उन के भी साडा आटा थोड़ा हो जाऊगा, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? घर जाऊगा समा जो उसे चाहिए लोग तो साडा आटा घर जाऊगा। कहती है कि आटा कट जाएगा। आहो इधर छोड़ गया आपको। इधर सही हो, दिल लगता है? नहीं दिल नहीं लगा मेरे दिल लगा। मैं तो नहीं टाप ना पई मेरे दिल लगा। दिल उधर ही लगता है। नहीं लगता ही नहीं गा। ले चले मैं शेखपुर। शेखूपुरे जाना जे? आहो क्यों, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ। रखना नहीं ਹਾਂ। मैं रखने बथेरे आ। आहो बथेरे रखने रखने बथेरे शेखपुर। आहो वो ही नहीं रखने वाले थान, वो ही नहीं रखने वाले ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਮਾਈਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ दिल लगाया था दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए। ਕੀ दिल लगाया था दिल लगी के लिए। ਗਾਉਣਾ ਗਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਗਾਉਣਾ ਕੋਈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਉਂਦਾ ਗਾਉਣਾ
मैं जमते नु गुणे नहीं वो खादा जो है कि मैडम लोग झाड़ा गा दे मैंने सोने दी डंडियां ले आ दे ते कुर्बान माँ जी की नोक झोंक जो है वो चलती रही। दे गया। खैर हम लोग आज मौजूद हैं ये मलीहा ओल्ड होम में और यहाँ पर वो माएँ मौजूद हैं जिनके अपने घर वालों के पास उनके लिए शायद जगह कम पड़ जाती है, रोटी कम पड़ जाती है, देने के लिए इज़्ज़त नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती। सारी ज़िंदगी माएँ अपनी औलाद की तरबियत परवरिश इस सहारे पे करती हैं कि कल को बेटे बड़े होंगे हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन वही बेटे इन माँओं को इस तरह से छोड़ जाते हैं। एक माँ थी जिसने 18 महीने गलियों में गुजारे, 18 महीने लोगों के मोहल्लों में फिरी और उसके बाद यहाँ पर पनाह मिली। जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर और जो भी लोग इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, इन माँओं का सहारा बनना चाहते हैं, इनको कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर इन लोगों से रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।